Hello, learners. Today we are going to continue with the chapter Weathering the Storm in Assam from Class 9th book Moments. I'm Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. तो फर्स्ट वीडियो के एंड तक हमने ये जान लिया था कि प्रशांत अपने विलेज कैलिकुडा पहुंच चुका है और वहां जाकर वो रेड क्रॉस शेल्टर के पास में जाता है जहां पे फ्लड से या उस डिज़ास्टर से जो भी लोग सफ़र कर रहे थे उनको शेल्टर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. अब उस शेल्टर होम में जो पहला चेहरा, पहला पर्सन क्राउड में जो दिखाई देता है प्रशांत को, वो है उसकी maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him. The grandmother looked weak with hunger and she just rushed towards him. वो दौड़ के उसकी तरफ जाती हैं. Her hands outstretched, अपने हाथ फैला के वो उनसे मिलना चाहती हैं. And her eyes brimming. Brimming, eyes brimming तब होती हैं when they are full of tears. So उनकी आंखों में tears हैं. That's why it is said that eyes brimming. It was a miracle. उनके लिए एक miracle था. They had long given him up for dead. उनको ये लगा था कि प्रशांत इज़ डेड. उन्होंने उस स्टॉर्म के बाद में बहुत लंबे टाइम से यही सोच रखा था कि प्रशांत इज़ नो मोर. बट टू सी हिम बैक शी फेल्ट ग्रेट. Quickly, word spread, and his friend extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Quickly, word spread. Word spread का मतलब है कि ये बात बहुत जल्दी फैल गई. ठीक है, और उसकी जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स ऑल द रिलेटिव्स, दे गैदर्ड अराउंड हिम, हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ. सब ने रिलैक्स्ड फील किया और उससे अपना लव शो किया. प्रशांत एंक्शसली स्कैन द मॉटले बैटर्ड ग्रुप. प्रशांत ने स्कैन किया. स्कैन का मतलब है बहुत अच्छे से देखा उस मॉटले. मॉटले का मतलब है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल. बैटर्ड मीन्स दोज हु वर इंजर्ड. फाइन. सो प्रशांत ने बहुत एंक्शसली उस ग्रुप ऑफ पीपल को देखा जहाँ पे लोग इंजर्ड थे. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. सो एवरीबडी वॉज देयर. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. The next morning, Prashant realized that he had to get over his emotions and try to change the situation. Fine. He decided to get a grip over himself, to get a control over his emotions. By the next morning, he tried to come out of that sudden shock. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो 2,500 लोगों का ह्यूज क्राउड था, they all were very strong. They had lost everything in the storm, but still they had maintained their willpower to live. Fine. And 86 lives were lost in the village. All the 96 houses of the village had been washed away. Everybody has lost, in a way, their everything. Fine. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Now, here it is told that they had been there at the shelter for the last 4 days. They had been there at the shelter for last 4 days. So, it was the fourth day and they could survive on green coconuts. और इस दौरान वो green coconuts खाकर सर्वाइव कर पा रहे थे. ठीक है, बट अब जो है ये सब कुछ इनसफिशियंट फील हो रहा था बिकॉज देयर वॉज अ टुमल्ट ऑफ पीपल. मीन्स टुमल्ट का मतलब है व्हेन समथिंग इज डिसऑर्डर्ड. Disordered crowd of people was there. So these coconuts were insufficient for those large number of people. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village.
अब प्रशांत जो कि अब 19 ईयर्स का है, उसको ऐसा लगा कि उसको एक लीडर की तरह अपने विलेज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. इफ नो वन एल्स डिड, किसी और ने कुछ नहीं किया, then he should do something as a leader of his village. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब उन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया प्रशांत ने, यूथ्स और एल्डर्स का, है ना, जो कि मिल के, जॉइंटली मीन्स दे वर गोइंग टू डू दिस टुगेदर. ठीक है, क्या करने वाले थे वो प्रेशराइज करने वाले थे मर्चेंट को टू पार्ट विद हिज राइस. टू पार्ट विद यहाँ पे किस लिए बोला है? बिकॉज मर्चेंट को जो पब्लिक जो है, जो अफेक्टेड पीपल जो हैं, उनको राइस फ्री में देना था, जस्ट टू feed the people. Fine. This time the delegation succeeded and returned triumphantly. अब delegation यानी जो उनका टीम था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, है ना, अब जो यूथ और एल्डर का ये टीम बन के गया था, ये सक्सेसफुल हुआ और दे रिटर्न ट्रायम्फेंटली. ट्रायम्फ का मतलब होता है टू विन. तो वो जो मिशन लेके गए थे, वो मिशन उनका कंप्लीट हुआ एंड दे कुड अरेंज सम राइस फ्रॉम द मर्चेंट. wading through the receding waters with food for the entire shelter. अब वो जो ट्रायम्फेंटली आए, सक्सीड होकर आए, तब उनके पास में फूड था एंटायर शेल्टर के लिए, एंड दे रीच टू देम बाय wading थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग. अब कोई भी वहाँ पे परवाह नहीं कर रहा था कि जो राइस जो था वो ऑलरेडी रॉटिंग स्टेट में था, वो खराब हो रहा था. They were hungry and they wanted to feed themselves at any cost. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. Now, just because the trees were wet, so it is told कि जो फायर है वो reluctant थी, means the trees were reluctant to light a fire because the trees were wet. तो वो पूरा फायर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, है ना, ऑन विच टू कुक द राइस. तो जितना भी स्लो फायर वहाँ पे वो लोग अरेंज कर पाए, दे कुक्ड राइस ऑन दैट फायर. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. For the first time in 4 days, okay, they could feed up themselves properly. उन 4 दिनों में जो सर्वाइवर्स, जो साइक्लोन से बचने वाले लोग थे, शेल्टर में थे, वो अपने बेलीज यानी अपने स्टमक को अच्छी तरह से फिल कर पाए. ठीक है. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उसके लिए नेक्स्ट टास्क क्या था? उसके लिए नेक्स्ट टास्क था कि एक ऑर्गेनाइज की जाए टीम ऑफ यूथ की, यूथ वॉलंटियर्स, मतलब जो अपनी इच्छा से काम करने के लिए आगे आते हैं, जस्ट टू सर्व द पीपल, सर्व द नेशन, है ना. सो उसको ज़रूरत थी कि कुछ ऐसे लोग अपनी इच्छा से आगे आए जो वहाँ पे जो भी शेल्टर वाले प्लेस में जो भी फिल्थ, यूरिन, वॉमिट और फ्लोटिंग कैकेसेस, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, है ना, जिस तरह की भी केयर, जिस तरह का भी कंट्रीब्यूशन वो लोग कर सके, चाहे वहाँ पर क्लेनलीनेस मेंटेन करने के लिए या फिर जो इंजर्ड पीपल हैं उनके वुंड्स को टेंड करने के लिए, उनके फ्रैक्चर्स को टेंड करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए. सो he wanted to organize a team of youth who could do this all. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. अब 5th डे में क्या हुआ कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो उस शेल्टर के ऊपर से निकला और उसने कुछ फूड पार्सल्स नीचे गिराए. उस 5th डे के बाद में वो पार्सल गिराने के लिए वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ पे वापस नहीं आए. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter
with these utensils on their stomachs. अब उन्होंने जो एक यूनिक आइडिया निकाला वो क्या था कि उन्होंने शेल्टर से एम्प्टी खाली बर्तनों को उन्होंने गैदर किया और फिर वहाँ पे जो बच्चे थे, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, उन बच्चों को मीन्स वहाँ पे लिटा के और जो एम्प्टी यूटेंसिल्स हैं उनको उनके स्टमक पे रखवा के उन्होंने एक तरीके से किसी तरह से इंडिकेशन देना चाहा है कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट. फाइन. सो टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री. ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अपना मैसेज कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन कर पाएँ पासिंग हेलीकॉप्टर्स को कि वो सब लोग हंग्री थे. द मैसेज गॉट थ्रू और ये मैसेज बहुत सक्सेसफुली डिलीवर भी हुआ. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. अब उस शेल्टर के लगातार राउंड्स लगाने लगा हेलीकॉप्टर. रेगुलर राउंड्स होते थे और फूड भी ड्रॉप होता था और बेसिक नीड की जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी गिराई जाती थी. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफन्ड. अब प्रशांत ने ये रियलाइज़ किया, उसने जाना कि बहुत से बच्चे जो हैं उनके मदर या फादर इस डिज़ास्टर में दे आर नो मोर. सो उसने उन ऑफन बच्चों को देखा, उनकी कंडीशंस को देखा एंड देन ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम. उन्होंने ऐसे बच्चों को जो ऑफन थे उनको एक साथ एक ग्रुप में इकट्ठा किया और एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर बना के वहाँ पे उन बच्चों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई. विमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम और जो विमेन थी उनको अपॉइंट कर दिया गया उनकी लुक आफ्टर करने के लिए, उन ऑफन बच्चों का टेक केयर करने के लिए. वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर और वहाँ पे जो मेन थे उनको फूड और दूसरी चीज़ें जो शेल्टर प्लेस पे चाहिए थी वो सब अरेंज करने के लिए अपॉइंट कर दिया गया. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब as the weeks passed, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, प्रशांत ने बहुत जल्दी ये रिकग्नाइज कर लिया था कि विमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो अपने इस ग्रिफ में, अपने इस दुख में, अपने इस सौरों में बहुत ही ज़्यादा डीपर एंड डीपर दे आर गोइंग, मीन्स दे आर गोइंग डीपर एंड डीपर, दे आर सिंकिंग इन देयर ग्रिफ. फाइन. सो उसने रियलाइज़ किया कि वो लोग अपने इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो चिल्ड्रन, ऑफन चिल्ड्रन और वो विमेन. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. So बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशांत ने persuade किया विमेन को कि वो फूड फॉर वर्क, ठीक है, जहाँ पे उनको काम करने के लिए सिर्फ खाना मिलेगा, विमेन को पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे एनजीओ में उन्होंने उनको काम करने के लिए इंस्पायर किया और बच्चों के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए. अमिड दिस डिजास्टर he himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. उनको भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था प्रशांत को, तो उन्होंने क्रिकेट मैचेस जो हैं वो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए. प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. अब प्रशांत ने कुछ वॉल्टियर्स को एंगेज किया है ना, ताकि वो हेल्प करें विडोज़ की और चिल्ड्रन की कि उनके भी घर के जो ब्रोकन पीसेस हैं उनको वो कलेक्ट कर सकें, वहाँ से कलेक्ट कर सकें. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children grow up without love. गवर्नमेंट का प्लान, जो इनिशियल प्लान था गवर्नमेंट का, वो ये था कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए ऑर्फन्स के और विडोज़ के लिए कि जहाँ पे उनको प्रॉपर टेक केयर मिल सके. लेकिन ये स्टेप जो है वो सक्सेसफुली रेजिस्टेड हुआ, मींस इसका विरोध किया गया,
ठीक है, बिकॉज इट वॉज फेल्ट, क्योंकि ऐसा सोचा गया, ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे विडोज़ या ऑर्फन्स को रखा जाता है, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। जिस इंस्टीट्यूशन में ऑर्फन्स रहेंगे वो अकेले होंगे, वहाँ पे उनको किसी का लव नहीं मिलेगा। एंड विडोज़, अगर विडोज़ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रहती हैं, दे वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, है वो सफ़र करेंगी स्टिग्मा से और लोनलीनेस से। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज़ अ मार्क ऑफ डिस्ग्रेस, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पर्सन जो है अपने आप को दूसरों से अलग और कहीं ना कहीं उनसे रैंक में जो है वो लो समझता है, ठीक है। सो एक इस तरह का लेबल किसी पर्सन पे लग जाता है कि वो कंसीडर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो अगर ऐसे विडो हाउसेस बनेंगे तो जो वहाँ पे लेडीज़ हैं वो दे विल फील लोनलीनेस। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. अब प्रशांत का जो ग्रुप था, यूथ्स का जो उसका टीम था, वो ये बिलीव करता था कि जो ऑर्फन्स हैं उनको रीसेटल कर देना चाहिए उनकी ही अपनी कम्युनिटी में। फाइन, उनकी ही अपनी कम्युनिटी में उनको रीसेटल कर देना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो उनको न्यू फॉस्टर फैमिलीज़ जो हैं, जहाँ पे फॉस्टर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक ऐसी फैमिली है जो प्रोवाइड करती है कस्टडी या गार्डियनशिप फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड और अनेबल टू लुक आफ्टर देम। सो वो ये चाहते थे कि वो जो बच्चे ऑर्फन्स हैं और जो विमेन जो विडोज़ हैं, है ना, वो मिलके एक फॉस्टर फैमिली कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, ताकि जो चाइल्डलेस विडोज़ हैं उनको बच्चों का प्यार मिले और जो चिल्ड्रन हैं उनको एडल्ट केयर मिले, जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको एक मदरली केयर मिले, ठीक है। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. अब 6 months हो चुके हैं इस डिज़ास्टर को, इस डिवास्टेशन जो कॉज किया सुपर साइक्लोन ने उसको, और अब जो है प्रशांत वो अपनी स्पिरिट को जो है वो हील कर चुका है, सिंपली बिकॉज उसके पास में अपने बारे में, अपनी पेन्स के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। He is now practicing to provide happiness to others. Fine. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. So अब वो एक हैंडसम और यूथफुल चेहरा है जिसको सभी चाहते हैं, ठीक है, जिसको सभी सर्च करते हैं, सभी विडोज़, ऑर्फन चिल्ड्रन, है ना, उसके गांव के, उसके विलेज के, जिनकी उन्होंने, प्रशांत ने उनके डार्केस्ट आवर में, यानी उनके सबसे दुख की घड़ी में उन ऑर्फन्स की, विडोज़ की हेल्प की। उस हैंडसम यूथफुल फेस को सब लोग अपने आसपास चाहते हैं एंड दे जस्ट सीक आउट फॉर हिम।